Good evening, children. Good evening, ma'am. Good evening, Good ma'am. evening, ma'am. So, children, we will be starting with a new topic altogether today. And what is that? That is the gravitational force, right? So, this actually is like after the rotational motions, because some of the children are having the half yearly examinations and they are not attending the classes, right? So, I want everyone to attend the class for the rotational motion. So, I'm starting with a rather easy topic, and that is the gravitational force, right? Now, what is gravitational force? See, this actually is a revision of what we have done it in class 9th, right? If you all remember the class 9th beautiful chapter, that is Newton's law of gravitation. Yes, huh? Kepler's law of planetary motion. Hope you remember. If you don't remember, I'm there to just make you remember everything in few minutes via this mind map, and then we will learn all those new things which we will be studying this year about the gravitations. Now, what is gravitation? Gravitation is the force between any two object in the universe, whether it is too small object or whether it is too big object. The universal law of attraction is always there. Why this attraction happens? This is because of the mass of the object, right? So the universal law of gravitation, it is equal to the famous F is equal to g m1 m2 divided by r square. Okay, we will write it. Now, what is today we will be learning the revision of the Newton's law of gravitation, the characteristics of the Newton's law of the gravitations, the importance. And this law is universal, and the value of the g in it, it is also a universal constant, right? All that we will be learning in just next few minutes, and then we will be doing the new things in it, that is that we will be doing the numericals. Okay, and the gravitational law which we studied in class 9th, that was basically the scalar law, but a force is a vector quantity. Now that you know about vectors a bit, you will be using the vectors to do the problems of the gravitation also. Yeah. So what we will be learning? The Newton's law of gravitation. Right. Then we will learn the characteristics, that it exerts equal forces on each other, big or small, inversely proportional to distance between the object. More is the mass, more is the force. The gravitational force is the weakest in the nature, but it is significant if the mass of the body is very large. This force becomes very significant in the case of attraction between moon and earth and sun, right? Some of the huge planets and a small body, right? So this is what we will be revising. But what is new? That gravitational force is a central force, it is also a conservative force. These two facts are new to you, right? Then why is this gravitational force important? Because this explains the motion of the planets around the earth, the presence of atmosphere around the earth. The launching of satellite is based on the Newton's law of gravitation. The tides are formed because of the gravitational force between the sun and the earth, moon and the earth, right? The rainfall, snowfall, everything happens because of the gravitational force. Yes, this gravitational force acts between every object in the universe, every object in the universe. Now, if I say that if I move a finger, right, I am disturbing the whole universe, right? How? I'll tell you that. Then the force of attraction is between the two galaxies, huge two galaxies you consider. There is a gravitational force of attraction between them. You consider two tiny objects. You consider two balls in your two hands. There is a gravitational force of attraction between them. Forget it. Have a small molecule. There is a force of attraction between the two molecules also, right? So the gravitational law is a universal constant, and this is what we have will be learning in details in today's class. Okay, now I'm going to take the notes, and all of you, hope you're ready with your notes, and you have to keep on writing the notes also, and put today's date. Today is 12th. No, this is not 12th of August. Why the date is changed? Just a moment.
What is the date today? I'll insert the date. Yeah, today I think it is the 13th of October. 13th October, right? So he has taken the wrong date. Please put this as 13th of October here. It's not 12th of August. Let me change this. This is 13th October 2020, right? So we know when we started this. Okay, now we will study about the Newton's law of gravitations. Now let me revise what you have learnt it in the lower classes. Newton भैया ने बताया था इनको, ये दादाजी है ना, ये न्यूटन दादाजी बहुत ही जोरदार हैं, सब जगह अपने जो रिसर्चेस है उसको लगा दिए. एक्चुअली कोविड जैसा ही एक प्लेग वेग हुआ था, उनको बोले कि घर जाइए, यूनिवर्सिटी बंद है, जाके अपने घर पे बैठे थे और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उन्होंने बताया. वो पेड़ के नीचे बैठे थे, वो स्टोरी आप लोगों ने भी सुनी होगी, उनके पेड़ के ऊपर से एक एप्पल उनके सर पे गिरा और उन्होंने ग्रेविटेशन के लॉ निकाले. बेटा ये जो ग्रेविटेशन के लॉ जो है ना, ग्रेविटेशन के जो लॉज है ना, इट इज बेस्ड ऑन द फेमस केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, राइट? वो केपलर ने प्लैनेटरी मोशंस के लिए जो लॉ बनाया था, बहुत सारे कैलकुलेशंस, मरे आप सोचो कि पूरी पूरी 60 साल लगा दिया था. उसके बारे में एक अलग सेक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे. तो ग्रेविटेशन की लॉ है, केपलर्स के थर्ड लॉ से लिया गया है ना? तो लेकिन न्यूटन की लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ उन्होंने बताया. इट इज नॉट फॉर ओनली द प्लैनेट्स, बट इट इज फॉर एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. नाउ फॉर दिस let me consider an object. This is a class 9th revision. The first object is having a mass, a small mass. There is a mass m2 also. Just in the line joining them, I am taking the mass of the object 1, that is equal to m1, and the mass of the object 2, that is equal to m2, and there is a line which is joining these two masses. Consider that these two masses are the point masses. Center of mass से दोनों को distance ले लो. If this distance is equal to say r, these are all point masses. I'm not considering a huge mass. That will be different, right? Now this is a point mass, and the force of attraction between these two masses, it is directly proportional to the product of the masses. More is the mass, more is the force, right? And it is inversely proportional to the square of the distance between them. Now these two laws were combined together. This is the first law and this is the second law. When you combine these two, you get F is directly proportional to m1 m2 divided by r square, or we can write F is equal to some constant, and here we put it as gravitational constant, and m1 m2 divided by r square. Now this value of g is called as the gravitational constant, and this is a universal constant which is having a value of 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kg ka square. This gravitational constant was found by a very famous chemist. He's actually a chemist, but he found out the value of G, and his name was Cavendish. You know, he conducted certain experiment and he got the value of G. This is what we learned it in class 9th also, which is just a revision. Now what's new? What's new is the vector form of the gravitational law, right? Now the vector form of the gravitational law says that the force of attraction between the two objects can be represented in the vector form also. Whenever we write it in the vector form, that means we need to write the direction of the force, right? How do I write the direction of the force? How do I depict it in the diagram? It's very simple. As you indicate the vectors in the same form, you can do it this also. Right. Now let me consider there is a point object. This is a spherical object. I'm just taking it for example, right? Now this is another object. Both are having the center of mass out here. The mass of the body m1, and this is the mass of the second body, that is equal to m2. Now these forces
You join the center of mass of these two objects, right? Now, if the position vector between these two body, call this body A and call this body as B. Now, I know that the mass m1 is going to attract the mass m2 and the force of attraction will be from B to A. M ने बोला, m1 ने बोला m2 से, है ना, ग्रेविटी की वजह से मैं आपको अट्रैक्ट करता हूं और अट्रैक्शन है तो नेचुरली अपनी ओर खींचेगा, है ना। m1 ने m2 से बोला आइए मेरे पास, मैं ग्रेविटी की वजह से आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो m2 ने भी m1 से बोला हाँ मेरे पास भी तो मास है साहब, मैं भी आपको अट्रैक्ट करता हूं, आप मेरे करीब आइए। तो ये दोनों एक दूसरे के करीब होंगे और यहां जो फोर्स डिस्टेंस है दोनों के बीच में, आई पुट दिस एज r. So what I'm going to do is, what is the force on A because of B? Force on A because of the mass which is located at B क्या होगा? तो आप बोलोगे जी मास के प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ है? m1 मतलब A पर फोर्स B ने लगाया और डायरेक्शन अपनी ओर खींचा, तो डायरेक्शन कहां से कहां तक होगा? तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू ए बी का यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कहां से कहां तक होगा? डायरेक्शन होगा आपने ए से स्टार्ट करनी है और बी की ओर जाना है, क्योंकि बी ए को बुला रहा है ना, बी ने ए को अपनी तरफ खींचा। अब बताइए व्हाट इज द फोर्स ऑन द बॉडी बी बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए। ए ने उस पर फोर्स लगाया, सो फॉर्मूला क्या रहेगा इसका? जी m1 m2 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। बट क्या हुआ? बी पर फोर्स ए ने लगाया और उसको अपनी तरफ बुलाया, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे, दैट विल बी फ्रॉम B to A. This is actually called as the vector form, right? तो वेक्टर फॉर्म में हमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो मिलता ही मिलता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन भी मिलता है। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द वेक्टर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट? तो वेक्टर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको बताएगा कि भाई डायरेक्शन कहां से कहां तक है। हर बॉडी दूसरे किसी बॉडी को जरूर अट्रैक्ट करेगा और ये दो बॉडी आपस में जैसे अट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो एफ ए बी का मैग्नीट्यूड देखो और एफ बी ए का मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, दोनों का मैग्नीट्यूड आपका सेम है, लेकिन क्या अलग है? डायरेक्शन अलग है। तो इफ आई से दैट इज एफ ए बी इज नेगेटिव ऑफ एफ बी ए, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट करते हैं। नाउ डू दे कैंसल ईच अदर? नो, दे डू नॉट cancel each other because they act on two different bodies and they are the action and reaction फोर्स। ए ने फोर्स बी पे लगाया, बी ने फोर्स ए पे लगाया, कहां एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं? फोर्स कब कैंसिल होगा? फोर्स तब कैंसिल होगा जब दोनों ही फोर्सेस एक ही बॉडी पे लगते हैं तो कैंसिल होगा। अब तो ये दो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं तो कैंसिल नहीं होंगे, एग्जिस्ट करेगा।
और एक important feature, this is about the Newton's law of gravitation in the vector form. Now we will also study about some of the important properties about the gravitational constant, and once we are done, then we will come to more features of this gravitational force in the vector form, so that we will be using all this property. Important point about the gravitational constant. What is the important point about the gravitational constant? That gravitational constant is a scalar quantity, right? Now, its value is 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kg square. This is also, you know, in SI units. CGS unit में कितना होगा? 6.67 into 10 to the power of minus 8 9 centimeters per gram square. Okay. डायमेंशनल फॉर्मूला जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कई बार जी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जी की वैल्यू, कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है पूरे के पूरे यूनिवर्स में, इट इज अ कांस्टेंट, है ना, थ्रू आउट द यूनिवर्स. यू टेक इट इन द अर्थ, you take it in the moon, you take it in any of the galaxies outside our galaxy or anywhere in the universe, the value of capital G is a constant. The value of the capital G, it is a constant, हमेशा constant होगा, and it is independent of, है ना, and it is independent of the nature and the size of the bodies, and also the nature of the medium between the bodies, right? And electricity, it will be different, but if you talk about the gravitational constant, it is independent of the size of the body, it is independent of the shape of the body, it is independent of the nature of the body, it is also independent of दो mediums, है ना, दो bodies के बीच में आपने कुछ और medium रख दिया, air रख दिया, vacuum रख दिया, लोहा रख दिया, कॉपर रख दिया, मिट्टी रख दी, कुछ भी रख दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, जी का वैल्यू कांस्टेंट, इसका मतलब कांस्टेंट. द वैल्यू वाज फर्स्ट फाउंड आउट बाय टॉर्शन बैलेंस बाय the great scientist called Cavendish. Okay, so these are the important points about the gravitational constant. Okay, now we will discuss now about some important points about the gravitational force. Okay, now what is so important about the gravitational force? Whenever I talk about the gravitational force, now the first thing I'll tell you is gravitational force are developed in form of action and reaction pair. They obey the Newton's third law of motion. What did I tell you? पहले बॉडी ने दूसरी बॉडी पर जितना फोर्स लगाया ना, पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी को अपनी ओर जितना फोर्स से खींचा, उतने ही फोर्स से जो बॉडी 2 है उसने भी पहले वाली ऑब्जेक्ट को उतने ही फोर्स से खींचेगा. मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स सेम रहेगा और डायरेक्शन वाइज दोनों ऑपोजिट होंगे और दोनों कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे. चलिए अब सेकेंड पॉइंट पर आते हैं. सेकेंड पॉइंट पे ये कहता है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि चलो मैं यहां खड़ी हूं, है ना, और मेरे पास यहां पर एक बहुत बड़ी वॉल है, रूम की वॉल है, राइट. आई वे से अबाउट 62 kg एंड दिस जो वॉल है इट इज वेइंग अबाउट से 2000 kg. ओके, नाउ इज देयर अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मी एंड द वॉल? मेरे और इस दीवार के बीच में क्या कोई फोर्स है? यस भैया, ग्रेविटेशनल फोर्स है. ठीक है. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला? तो आप बोलोगे जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ओके, अब मेरे और दीवार के बीच में एयर है, मेरे और दीवार के बीच में, दिस वॉल के बीच में आई हैव गॉट एयर. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ओके, फाइन. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू imaginarily fill this room with water. I'm going to fill this room imaginarily with water. Now, what is the force of attraction between gravitational force, right? I'm not talking about any other force. I'm talking about the gravitational force between me, ma'am, and the wall,
राइट अभी मैम और वॉल के बीच में कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा? पानी भर दिया बीच में बेटा, मीडियम चेंज हो गई, हम दोनों के बीच में पहले एयर था, अब मैंने पूरा पानी से भर दिया, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा? आंसर इज नहीं कोई चेंज फर्क होगा। नहीं पड़ेगा। कोई भी मीडियम भर दो, मीडियम की वजह से आपके पास जो वॉल और जो बॉडी है या दो ऑब्जेक्ट के बीच में मीडियम की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होता है। राइट, दिस इज द सेकेंड वन। राइट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम। नाउ अच्छा ठीक है, हमने तो मीडियम को चेंज किया, फोर्स पर कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, वॉल और मेरे बीच में अपने घर में जितना चेयर्स है ना सबको लगा दिया, कुछ कुछ दूसरा दूसरा ऑब्जेक्ट्स को मैंने इन दोनों के बीच में लगा दिया, मेरे और वॉल के बीच में। क्या फोर्स पे असर पड़ेगा? नहीं। ठीक है, मेरे और वॉल के बीच में कुछ भी आ जाए, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उस ऑब्जेक्ट की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, नाउ दैट इज द थर्ड पॉइंट। नाउ लेट अस कम टू द फोर्थ पॉइंट। Fourth point says that the gravitational forces are central forces. Now, this is very interesting, right? What do you understand by the central forces? Central forces means, suppose I have got an object here, I've got another object here, I've got another object here, three objects, right? Now, this is mass is m1, the mass of the second object is m2, and the mass of third object is m3. Now, these two objects m1 and m2 will attract each other, right? Now, if I have got the center of mass of the first object and the center of mass of the second object, the force of attraction will be acting along the line joining the center of the masses. किसी और डायरेक्शन पे ऐसे टेंजेंशियली कुछ नहीं जाएगा। आप दोनों मासेस के सेंटर ऑफ मास को निकालिए और इन दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइन हो रहा है, m1 ऐसे अट्रैक्ट करेगा, m2 ऐसे अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन था ही। अब हम लाते हैं जो इस बॉडी पर m3 के सेंटर पर जाते हैं, तो m2 ने भी m3 को अट्रैक्ट करनी है, तो अपनी ओर ऐसे खींचेगा, m3 बोलेगा मेरी तरफ आइए, मैं आपको अट्रैक्ट करता हूं। तो सेंट्रल फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या है कि दो बॉडीज है, उन दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास से दोनों को जोड़ते हुए एक लाइन बना लीजिएगा और उसी लाइन के डायरेक्शन में आपका फोर्स एक्ट करेगा। सेंट्रल फोर्सेस दो है हमारे पास, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्सेस है, और दूसरा अगले साल जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर आल्सो सेंट्रल फोर्सेस। दो चार्जेस के बीच में आप एक स्ट्रेट लाइन बनाइए और उसी स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन के अलोंग ही आपके सारे फोर्सेस एक्ट करेंगे। ठीक है, सेंट्रल फोर्सेस। ओके, द नेक्स्ट वन इज इन द लास्ट work, energy and power, we studied about the conservative force. Now, gravitational forces are conservative forces. Gravitational forces of conservative forces, that means मान लो कि बॉडी को A से लेकर के B तक का जाना है, तो work done will depend only on the displacement between the A and B. It will not depend upon the path. It will depend only on the initial position and the final position. Gravitational forces are the conservative forces. So, work done by the gravitational force does not depend upon the path. It will depend only on the initial and the final position. Right. Now, the next one is, if any particle is moving along a circular path under the action of the gravitational force, then the work done by this force is always equal to 0. Now, I've got my earth out here and there is moon which is revolving round the earth. And what is the force which is responsible for this circular movement? This is because of the mutual gravitational force between the earth and the moon, right?
Now these both have the mutual gravitational force and the moon is revolving around the earth. Now what is the work done by the gravitational force? Now the work done by the gravitational force will be equal to 0. Now this law hold good for wide range and short range, but fails when the distance between the object is less than 10 to the power of 9 meters, that is in the order of intermolecular distances. जब distances बहुत 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 छोटा यानी 10 to the power of -9 meters से कम distance हो जाए तो तब gravitational force काम नहीं करता है, अन्यथा सभी distances के लिए gravitational force is valid. Gravitational force is very very weak. Now the force developed between any two masses is called as the gravitational force, and force between, special name, force between the earth and any body, it is called as the gravitational force. Class 9th में तब थे तो इस बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे. Force between any two object in the universe, it is called as the gravitational force, but the force between earth and any other body, it is called as the gravitational force. The total gravitational force on one particle due to a number of particles is the resultant of the forces of attraction exerted by on the particle given due to all the individual particles. This principle is called as the superposition principle. This is called as the superposition principle, and we are going to do a lot of problems based on this superposition principle. Okay, now this is the notes what you have to write, but I would suggest that we will do numericals and I'll send it the PDF across in the YouTube also, and also in the after the class also I'll be giving you the PDF. So leave 3 pages in your notebook and start doing the questions on the superposition principle, right? Okay, so 3, write the heading gravitation, put today's date, 3 pages, है ना, 3 pages आप उसके बाद छोड़ दीजिएगा, छोड़ के मेरे साथ न्यूमेरिकल्स बनाने की कोशिश कीजिएगा. चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स. या 3 पेजेस बेटा, दया 3 पेजेस लिख लो, ठीक है? ओके, बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स हम अब करने वाले हैं, ठीक है? व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम? या जस्ट मोमेंट. हमें पहला जो प्रॉब्लम करना है दैट इज द, एक हमने ऑब्जेक्ट लिया 1 kg का और स्क्वायर के एक कॉर्नर में रख दिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर पहला क्वेश्चन, और बाकी जो 3 इक्वल मासेस को लिया और उसको बाकी 3 कॉर्नर्स पर रख दिया. हमें फोर्स निकालना है इस 1 kg ऑफ मास के लिए के ऊपर, और हमें देखना है कि इस पर टोटल कितना फोर्स लगेगा. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपसे ये कहता है कि किसी भी पार्टिकल पर जो टोटल फोर्स आएगा, जितने भी बॉडीज रहते हैं ना, सबका फोर्स अलग 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 निकाल लो और सबको वेक्टर सम कर दो, ठीक है? तो 1 kg मास पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, तो तुम बोलोगे ए पे रखा हुआ मास है, उसने फोर्स लगाया और बोला कि अपनी तरफ आओ. बी पे रखा हुआ जो मास है ना, वो भी अपनी ओर खींचेगा, तो ये दूसरा फोर्स हो गया. सी पर रखा हुआ मास भी अपनी तरफ खींचेगा और ये रहा उसका फोर्स. तो व्हाट इज द फोर्स ऑन द मास ऑफ 1 kg? तो हमको अलग अलग फोर्स निकालना पड़ेगा. सबसे पहले मुझे फोर्स निकालनी है कौन सा? तो मैं कह रही हूं फोर्स ऑन डी, बिकॉज ऑफ द पार्टिकल विच इज लोकेटेड एट ए. तो फोर्स जो अट्रैक्शन है ना, तो इसने अपनी ओर खींचा, तो अपनी ओर खींचा, तो अगर मैंने इसकी कोऑर्डिनेट का वेक्टर्स का बना लिया, इसको एक्स एक्सिस लिया, इसको वाई एक्सिस लिया, तो ये देख रहे हो किस डायरेक्शन पे जा रहा है बेटा? इट इज गोइंग इन द माइनस आई डायरेक्शन. सो व्हाट इज द फोर्स मैग्नीट्यूड? जी एम इंटू 1, दोनों के बीच का डिस्टेंस, किस किस के बीच का डिस्टेंस? डी और ए के बीच का डिस्टेंस, which is equal to a, और a का मुझे स्क्वायर करना है. और डायरेक्शन की मैं बात करूं तो द डायरेक्शन इज अलोंग AD, which is equal to माइनस ऑफ आई कैप रे बच्चा, ठीक है?
नाउ ये मेरा फोर्स आ गया, दैट इज इक्वल टू F1। चलो और कौन अट्रैक्ट किया इसको? F। हाँ अनिकेत यहाँ देखोगे तो ये D से लेकर के D तक किसने अट्रैक्ट किया? D ने अट्रैक्ट किया। D पर फोर्स लगा, कौन लगाया? जो मास बैठा हुआ है D पर उसने लगाया। कितना आया? Gm इंटू 1 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना होगा? स्क्वायर का डायगोनल है बच्चा, स्क्वायर का डायगोनल, तो इसका मतलब होगा ये आएगा √2 टाइम्स ऑफ ए। √2 टाइम्स ऑफ ए का तुमको स्क्वायर करना है और उसके बाद डायरेक्शन भी लिखना है। डायरेक्शन लिखने के लिए बाद में देखेंगे, आप पहले मैग्नीट्यूड यहां से लिखेंगे, दैट इज फ्रॉम डी टू बी का यूनिट वेक्टर, डी से लेकर के बी तक का यूनिट वेक्टर। लेकिन बेटा नहीं हुआ, डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, है ना? तो डायरेक्शन लिखने के लिए क्या लिखेंगे? वी विल राइट इट एज GM डिवाइडेड बाय 2a का स्क्वायर एंड ये वाली एंगल ये एंगल दोनों कितने के बराबर है? आपको दिख रहा है ये दोनों कितना? बोलो 45 डिग्रीज है ना? तो इसके कंपोनेंट्स की मैं बात करूं तो ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू जो भी वैल्यू है मेरा फोर्स का, दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा, दैट इज cos 45 डिग्रीज माइनस आई कैप प्लस sin 45 डिग्रीज माइनस j कैप। सो व्हाट इज द वैल्यू बेटा? GM डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर एंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इट इज 1/√2 एंड माइनस आई कैप प्लस 1/√2 एंड दिस इज माइनस j कैप। ओके, तो रिजॉल्व कर लिया। और कौन सा फोर्स लगा? ये फोर्स लगा, दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन D because of the mass which is located at A. Now please बेटा आप किसी का माइक ऑन है, बंद कर लीजिएगा। GM into 1 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस फिर से A आ गया, लेकिन ये किस डायरेक्शन पे जा रहा है? दिस इज along the minus J direction. Therefore, what is the force? Force is equal to F of 1 plus F2 plus F3. F net will be equal to F1 plus F2 plus beta, that is equal to F3. So we will write this as, this is GM by A square into minus I cap plus दूसरे वाला हमारे पास में रहेगा GM by A square, लेकिन 2A square into 1/√2 minus √2i plus GM by 2A square minus क्या आएगा? 1/√2 and this is minus j cap and then plus लास्ट वाला क्या रहेगा? That is equal to GM by A square and then minus j cap. ऐड कैसे करते हैं? ऐड करना आता है वेक्टर एडिशन? हेलो, वेक्टर एडिशन ऐड करना आता है आप लोग को? यस, आई को आई के साथ और जे को जे के साथ और सो आपके पास कॉमन वैल्यूज आ रही है GM by A स्क्वायर और यहाँ आपके साथ दोनों के पास माइनस है तो यहाँ पर माइनस डालिएगा और यहाँ आएगा 1 plus 1/2√2 है ना, एंड दैट मच ऑफ आई कैप प्लस यहाँ पर भी आपके पास आएगा GM by A स्क्वायर और साथ में आपके पास यहाँ पर भी दोनों के पास माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी आप यहाँ माइनस डालोगे एंड दिस विल बिकम 1/√2 2√2 plus 1. So what I can have here it is, that is G minus GM by A square ब्रैकेट के अंदर 1 plus 1/2√2 एंड ब्रैकेट के अंदर आपके पास हो सकता है I plus J which is the net force. ओके, ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको नए लग रहे होंगे, हार्ड नहीं है बेटा। मैंने इतने सारे किया इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत सारा चीज है, लेकिन नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर एक वाले फोर्स पर इस पर फोर्स लगाना है तो निकाल लो ना कौन कौन फोर्स लगा रहा है, तो आपको बाकी के बारे में सोचना ही नहीं है।
जब हमने इन दोनों के बीच में फोर्स निकाला, सिर्फ ये दोनों को कंसिडर करो। जब हमने डी और बी को कंसिडर किया, सिर्फ डी और बी के बारे में सोचो और किसी को मत सोचो। और जब डी और सी के बारे में सोचो तो डी और सी के बारे में सिर्फ सोचो, बाकी कुछ मत सोचो। और सबको एक साथ फोर्स लगाओ और जोड़ दो, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ। खत्म हो गई बात। ओके, नाउ देन देयर इज अ स्पेशल केस. What is the special case? In the special case we have got, if you have got to find out the force in the case of a massive shell, you have got a shell, metal का shell हो या कोई और shell हो, shell मतलब सिर्फ यहाँ पर आपका मास रहेगा, अंदर पूरा आपका एम्प्टी स्पेस रहेगा, राइट? इसकी रेडियस मान लो r है और इसका पूरे का मास है मान लो m। मान लो कि हमारे पास इससे एक और ऑब्जेक्ट रखा गया है छोटा सा, जो सेंटर से कंपेयर करोगे तो r डिस्टेंस पर है। अगर ये बाहर है, मास m अगर बाहर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इन दोनों के बीच में कितना रहेगा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इक्वल टू जी एम स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसके बारे में, r के बारे में आपको कुछ नहीं करना। यहां पर ऐसा लगेगा द होल मास ऑफ द स्फीयर इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अगर पॉइंट आउटसाइड है, अगर पॉइंट आउटसाइड है, ये ऐसा बिहेव करेगा, कितना भी बड़ा शेल हो, एज इफ द होल मास इज लोकेटेड एट द सेंटर। ठीक है, इसके लिए मैं एग्जांपल आपको दे देती हूँ। या आर यू जस्ट 1 मिनट, जस्ट मिनट, या कर लेती हूँ, भूल भी जाती हूँ। हाँ, सॉलिड स्फीयर का पहले से बता रही हूँ। ठीक है, सॉलिड स्फीयर में आपके पास क्या होता है कि मेरे पास मास पूरा भरा हुआ है ना? तो अगर इसके बाहर कोई मास अगर यहाँ रख लो, तो आपके पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द स्मॉल मास m एंड द बिगर स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M will be as if the whole mass of the sphere is located at the center. If the distance between the center of the sphere and P it is equal to R, मतलब या मान के चलो कि O और P के बीच में डिस्टेंस R है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे रहेगा? सारा का सारा मान के चलेंगे कि यहाँ पर सेंटर पर है, तो फोर्स F is equal to gm into small m divided by r square। सिंपल ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगा। लेकिन if m is placed inside the sphere, तो क्या होगा? इस पर अंदर जाकर के रखने पर ऐसा कुछ होगा बच्चा कि ये जो बाहर वाली नीला वाला मास है, इस स्मॉल m को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ये वाला जो ब्लू पार्ट है आपका, ब्लू वाला जितना भी मास है, वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। कौन अट्रैक्ट करेगा? सिर्फ ये जो अंदर इसका रेडियस r लेकर के आप एक ऐसा पूरा स्फीयर और एक बना लो, जो इसके नीचे आएगा, वो जो स्फीयर आपका बना है, बस ये वाला जो स्फीयर है जिसकी मास है m डैश, वो इस पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। अगर जो अंदर वाले स्फीयर का मास है m डैश, तो वो मास m को अट्रैक्ट करेगा as if located at the center। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब क्लियर है? इंटरेस्टिंग बात क्या है? Two particles of equal masses move in a circle of radius r under the action of the mutual gravitational attraction. Find the speed of each particle. I have got the particle number 1. This is having a mass of say m. Another particle which is also having a mass of say m and the distance between them it is equal to r. तुम्हें पता है इस दोनों के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी। अगर ये बहुत ही मासिव है और क्या करेगा पता, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये दोनों फिक्स नहीं है,
हाँ, if they are capable of moving, imagine करो मेरे पास दो बड़े 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 स्टार्स है और ये स्टार्स ऊपर आसमान में है और ये दोनों स्फीयर्स ही तो होते हैं। जो स्टार्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्फीयर्स होते हैं ना, और दोनों इक्वल मासेस के, इक्वल मासेस, वो दोनों फिक्स थोड़ी है, दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब देखो, इमेजिन करो, हाँ, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो और इस आंखें को बंद करके फटाफट इमेजिन करो पहली बॉडी के चारों तरफ, ये इसको मैंने पहला बॉडी बोला और इसको मैंने दूसरा बॉडी बोला, ये पहला स्टार के चारों तरफ सर्कल में ये स्टार घूमे और इसके चारों तरफ, हाँ, ये वाले स्टार के चारों तरफ, हाँ, स्टार 2 के चारों तरफ एकदम परफेक्ट गोला, आप लोग गोला बना लेना प्लीज, यहां से परफेक्ट राउंड पर ये घूमेगा, है ना। तो आप देखिएगा कि दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है तो कितनी बनती है, दोनों के बीच में मूव इन अ सर्कल, सर्कल का रेडियस कितना है, सर्कल का रेडियस है r, है ना, और दोनों म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से गोल गोल घूम रहे हैं। तो आप बताइए कि दोनों पार्टिकल्स की स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड दोनों बराबर ही होगी, वो स्पीड कितनी होगी। तो आप मुझे बताइए बेटा कि जब रेडियस ये यही थोड़ी होगा, कभी आपके पास में वो यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, कंटिन्यूअसली दोनों के बीच में डिस्टेंसेस चेंज होते जाएंगे, है ना। तो आपको पता है ये वाला स्टार, एक्चुअली ऐसे स्टार्स को हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बाइनरी स्टार्स, है ना। एक मिनट, किसी ने लिखा है चैट पे, देख लूं। या क्या क्या पढ़े हमने, एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़े बताइए, एक्स्ट्रा क्या क्या पढ़े आज, जल्दी जल्दी। प्रशांत, फर्स्ट थिंग, Vectors form of gravitation. वेक्टर Form of gravitation. ऑफ Gravitation. ग्रेविटेशन। और क्या पढ़े हम, चलिए प्रशांत, हाँ अनिकेत, क्या और पढ़े, क्या points about gravitation constant. क्या Important points about gravitation constant. या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कैपिटल जी, और क्या पढ़े, यूनिवर्सल है वो, और स्क्रीन शेयर नहीं Important हुआ, पुराना वाला points देखो। about gravitational force. एक मिनट, और क्या दिख रहा है बेटा, और क्या बोले अपन ने, क्या पढ़े, या फास्ट, स्पेशल केस ऑफ शेल, या शेल के बारे में पढ़े थे ना। शेल, शेल में क्या होता है, बाहर रहेगा तो आउटसाइड का कैसे रहता फोर्स, आउटसाइड में अपने पास सिर्फ आउटसाइड है, देन द mass is considered to be located at the center, ठीक है। और अगर अंदर रहा तो कोई फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा, है ना, अंदर रहा तो फोर्स नहीं लगेगा। इनसाइड में नो फोर्स, ओके, ठीक है, ओके। और क्या पढ़े थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हमने एक चीज और नई चीज पढ़ ली थी, ओके। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस क्लास टुडे वेल?